Hello students, welcome to our channel, The Learning Access. I am Naveen Kauda. I will be teaching you maths. So today our topic of maths from standard 10 is EDL, that is from chapter 1. The meaning of EDL is, the full form of EDL is Euclid's division lemma. Because before moving on to Euclid's division lemma, let us do a little bit about real numbers. So what are real numbers? Real numbers is the collection of both rational and irrational numbers. As you have done in your previous classes, rational and irrational numbers. Irrational numbers are that can be represented in the form of P upon Q. Rational numbers that cannot be represented in the form of P upon Q. These cannot be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So this was a little revision of the real numbers. Now we'll do the Euclid's division lemma. देखते हैं क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग we are given with the two positive integers a and b. Given a and b are two positive integers, there exist two numbers p and r such that a is equal to bp plus r. Euclid division lemma is nothing but same as the division algorithm that we have learned in our junior classes in 4th or 5th class. So according to this, you can consider a as dividend, b as divisor, p as quotient, r as remainder. So basically dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. You can learn it like this. So what is the use of Euclid's division lemma? Euclid's division lemma helps us to find the highest common factor of two numbers. Between the two numbers, what is the highest common factor that is being shared by the two numbers? It helps us to find the HCF. How? So for example, we are given with the two numbers 42, 35. So we can write 42 and 35 in this form. हम 42 और 35 को इस फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? 42 is equal to 35 into 1 plus 7. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. In the next step, the divisor comes out to be the dividend and the remainder comes out to be the divisor. So 7 into 5 plus 0. When the remainder comes out to be 0, the last divisor, जो जब लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो जो हमारा लास्ट डिवीजर होता है वो हमारा क्या आ जाता है? HCF. So HCF of 42 and 35 is 7. इसको हम अपने एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.2 में यूज करेंगे. और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हेल्प करता है सॉल्व करने में. तो देखते हैं आगे कौन कौन सी चीजें हैं. इससे पहले कि मैं बताऊं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्या क्या सॉल्व करने में हेल्प करता है, दो तीन छोटी सी बातें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें एक्चुअली ये है बेसिक सी बातें, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. जब भी हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है ये, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है. अगर तो ये इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 0. अगर ये ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 1.
तो अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं? 2, एक है 0 और दूसरा है 1। उसी तरह अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से होंगे? या तो 0 होगा या 1 होगा या 2। इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने आएंगे? 5। और वो डिवीजर से हमेशा एक छोटा होता है, 0 से स्टार्ट होकर डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। इन चीजों को यूज करके हम क्यूब ऑफ नंबर, क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर्स को इवन या ऑड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी बुक में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है। Show that every positive odd integer is either of form 4q plus 1 or 4q plus 3। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि let a and b be two positive integers such that a is equal to bq plus r। अब यहां पे हमारे पास डिवीजर की वैल्यू क्या है? 4। तो हम when b is equal to 4 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4q plus r। अब जब हम a को 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? या तो 0 या 1 या 2 या 3। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट केस में a की वैल्यू क्या आ गई? 4q plus 0 दैट इज इक्वल टू 4q। दूसरे केस में 4 इस a की वैल्यू क्या आ गई? 4q plus 1। तीसरे केस में हमारे पास क्या वैल्यू होगी? 4q plus 2। यहां पे मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2q plus 1। थर्ड केस 4q plus 3। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? इवन। अगर हम किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दें तो हमेशा आंसर क्या होता है? ऑड। किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? इवन। किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऑड नंबर ऐड कर दे तो आंसर क्या आता है? ऑड। सो एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। तो इस तरह से हम कुछ सम्स सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट सम्स है यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड, वो हमारे पास सम्स है। या तो हम HCF निकालेंगे दो नंबर्स का, दो नंबर्स, तीन नंबर्स अगर हमें दिए होते हैं, वी कैन फाइंड द HCF बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आल्सो हमारे पास जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड सम भी है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3q plus 1, यही हमें शो करना है। तो हम वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर है 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1। तो हमें शो करना है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो या तो 3m की फॉर्म का होता है या 3m plus 1 की फॉर्म का। ठीक है, कैसे शो करेंगे? लेट अस सी। कंसीडर two numbers, two positive integers a and b such that by Euclid's division lemma हमारे पास क्या आ गया? by Euclid's division lemma हमारे पास क्या आ गया? bq plus a is equal to bq plus r। अब हम यहाँ पे जो डिवीजर की वैल्यू लेंगे, जो b की वैल्यू लेंगे, वो क्या लेंगे? 3। तो a is equal to 3q plus r। जब हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? 3। या तो r की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2। डिवीजर से एक छोटी, 0 से स्टार्ट करके डिवीजर से एक छोटी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। तो हमारे पास तीन केसेस बनेंगे जिसमें हम एक में r की वैल्यू 0 लेंगे, एक में r की वैल्यू 1 लेंगे और थर्ड केस में r की वैल्यू 2 लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3q। अब हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूं 3 into 3q स्क्वायर। इफ q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो q स्क्वायर into 3 यानी कि 3q स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं m, where m is some integer 3q स्क्वायर। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3q स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑफ फॉर्म 3m। दूसरा केस लेंगे, दूसरे केस में हम r की वैल्यू क्या लेंगे 1 when r is equal to 1। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3q plus 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a square is equal to 3q plus 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया a square is equal to, आइडेंटिटी ओपन करते हैं, a square 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 3q into 1 प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया a square is equal to 9q square plus 6q plus 1। यहां से हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया 3। हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा 2q plus 1। If q is a इंटीजर तो 3q स्क्वायर plus 2q भी एक इंटीजर होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will substitute m। तो हमारे पास दूसरा भी प्रूव हो गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m plus 1। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हम r की वैल्यू क्या लेंगे, r is equal to 2। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3q plus 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a square is equal to 3q plus 2 होल स्क्वायर। तो a square is equal to 9q square plus 2 into 3 6 6 to the 12 12q plus 4। अब हम इसको 4 को स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स में, 9q square plus 12q plus 3 plus 1। इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3। तो 3q square plus 4q plus 1 plus 1। If q is a integer तो 3q square plus 4q plus 1 is also an integer। तो हम इसको m से रिप्लेस कर देते हैं 3m plus 1। तो तीनों केसेस में हमने देख लिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m or 3m plus 1। I hope you have understood this। So now we'll do, अभी हमने किया था स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे क्यूब ऑफ, प्रूव करेंगे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हमें शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m plus 1 या 9m plus 8 की फॉर्म का ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हम लेते हैं जिनको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है a is equal to bq plus r। अब यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या लेंगे, हम लेंगे b की वैल्यू एज 3 जो कि इसका प्राइम फैक्टर है। 9 का प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है 3। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया a is equal to 3q plus r। अगर डिवीजर 3 है तो हमारे पास r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, r is less than or equal to 0 is less than equal to r but less than 3। यानी कि r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 1 और 2। ये तीन हमारे पास r की वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम तीनों केसेस में सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले केस 1 लेते हैं हम,
जब r की वैल्यू हमारे पास 0 है तो a हमारे पास क्या बन जाता है 3q plus 0 यानी कि a is equal to 3q। अब हमें क्यूब चाहिए तो हम क्यूब कर देंगे दोनों साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, a cube is equal to 27q cube। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, कैसे 9 into 3 cube cube लिख लिया। सेम if q is a positive integer या q is an integer तो 3q cube भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा जिसको हम m से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास आ चुका है a cube of any positive integer is of form 9m। अब हम सेकंड केस प्रूव करेंगे यहीं पे। so let us do the second case। सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, r की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल टू 3q plus 1। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब इज इक्वल टू 3q plus 1 होल क्यूब। आइडेंटिटी खोल देंगे, हमारे पास क्या आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया ये 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। इसको रीअरेंज कर देते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इन तीनों में से मैं कॉमन फैक्टर ले लेता हूं, दैट विल बी 9। यहां पे क्या रहेगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अगेन द सेम, अगर q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी इंटीजर्स ही होंगे, तो मैं इसको m से रिप्लेस कर देता हूं। तो हमारे पास क्या आ गया क्यूब ऑफ एनी नंबर इज ऑफ फॉर्म 9m plus 1। फर्स्ट केस में 9m आ गया, सेकंड केस में 9m plus 1। अब हम थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या है हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3q plus 2। क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब is equal to 3q plus 2 होल क्यूब। तो ये हमारे पास होल क्यूब आ गया। इसकी आइडेंटिटी खोल के हमारे पास क्या आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 9 टू द 27 54q स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 9 4 द 36q। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। सिमिलरली इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन निकालने का यही है कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए होता है। तो 9 into 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो ये हमारे पास इंटीजर कौन सा हो जाएगा m 9m plus 8। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी नंबर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 9m plus 1 and 9m plus 8। So that's all for this lecture। I hope आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।